Are we ready to call upon our panel for the night? Yes? All right. Let's give it up for our first person on the panel, who is my co-host and the co-producer of the show, the very amazing Priya Malik! And now give it up for your next panelist. He's a neuro doctor. He is a poet also. He also goes on Tanmay streams. That's all I know about him. Give it up for Sid Warrior! That's exactly the bio you gave me, bro, right? Yeah. Okay. Awesome. And our final panelist for the night is a stand-up comedian. He's very funny. He shares his surname with a famous Indian cricketer who is a bit controversial right now. So don't think about him, even though I mentioned him. Give it up for Abhijit Ganguly! Awesome. Abhijit, I don't know if you guys follow him on Instagram. He recently became a father. Yes. I had a baby daughter, and that is basically my whole identity right now. क्योंकि कपड़े फटे पड़े हैं. And we have been totally doing this, by the way. हम जब judges भी बाहर भी अभी hang out कर रहे थे, we have just been talking about kids and babies. ये दोनों ऐसा करके देख रहे हैं हमें. ये क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा. हम लोग इन लोगों को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि जब इनके बच्चे हों, they can be good fathers, both Sid and Simar. No, Sid was looking at me. He's like, bro, so how many kids do you have that you don't know about? And I was like, it's tough to answer that question. In the middle of a conversation, we randomly started asking Sid, because he's the doctor, so what do you feel about breastfeeding? This is very uncomfortable for me suddenly, randomly. But it's not uncomfortable for doctors. We are very used to it. Thank you. तुम कहीं पे भी जाओ, somebody will hear that, oh, you're a doctor, and they'll suddenly remember that, अच्छा, by the way, मुझे 10 दिन से headache हो रहा है. Like, this is very common, so that's absolutely fine. But Sid, how is it now that you're like a content creator, you're going on these shows, you're performing, and you're also like practicing, right? Yeah. So like, do patients come up to you like, bro, you were so good in that latent episode? Does that kind of stuff happen? Yeah, that does happen. So I was just thinking right now. Stethoscope से वो ले रहा है तभी अच्छा. Sir, आपका latent episode में वो जो किया था ना आपने. No, the funny thing is, I saw a bunch of people taking out their phones, and my first thought was, okay, I know this is not latent because they would not have allowed phones in here. So I know that we are much, much safer today. I'm so happy. Thanks for comparing, man. It's Hey, man, listen, the last time I was here, I got an FIR, so I just hope to come out of this without that. वो फिर नहीं होना चाहिए भाई. भाई आपका तो कपिल शर्मा में हुआ था ना कुछ. क्या था वो? बहुत बातें कर ली उस बारे में. अब कुछ और क्या हुआ था कपिल शर्मा शो में तुम्हारा? I don't know. Is it a controversy? Yes. I really want to know. Do you guys know there was something? You guys don't know, no? अभिजीत की कपिल शर्मा controversy. Okay, हाँ We have to बताइए. tell the audience. Yes. Just enough time has passed. I've talked about it नहीं, 1,000 लेकिन times. क्या हुआ था अभिजीत? I want to know. Let's take it offline. ठीक है. Now everyone will Google it. Yeah. You have Just- created इतना mystique ना. इससे अच्छा बता ही देते. Just after this show, Google Abhijit Ganguly Kapil Sharma controversy. Long time back, a joke got stolen and everything, and I had put out a post and all, and that got viral and stuff. And and that time was the whole Kapil Sharma, had just सुनील ग्रोवर पे जूता वूता भी मारा था. वो सब वो पूरा वो narrative चल रहा था that ego has got into him or something. So that also became a part of it, that he is stealing jokes also. But my thing was basically my joke got picked in his show. तो मैंने एक बस पोस्ट डाला था, that got viral, and after that was the whole thing basically. That was what a letdown of a story. ये तो Google करने लायक भी नहीं था. It's a cool story, yeah. It's a cool story. I like this. Yeah, I would tell my daughter this story. रात को सुलाते वक्त कपिल ने पापा का joke सुनाया. First of all, who's Kapil Sharma? Then establish the story. Yeah. Sweet. Okay, should we start the show? हाँ, let's do this. पोएट्रिस्तान को पूरे देश से कवियों ने अपनी कविताएं बोल के गा के भेजी. उनमें से कुछ चुनिंदा कविताएं और आवाजें आज हमारे सामने है इस मंच पर. सब प्रतियोगियों के पास कुछ समय है अपनी कविता सुनाकर हमारे जजेस को इम्प्रेस करने के लिए. सवाल उठता है, जजेस हैं कौन? आप हैं, हम सब हैं. हम ही लोगों में से 3 लोग चुने गए जो इनको इनकी कविताओं पर मार्क्स दें. इसके बावजूद इस मंच पर कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कवियों से बात करेंगे, फीडबैक देंगे, लेकिन आखिरी फैसला आपका, मेरा और हम सबका. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कविता का लोकतंत्र है. ये है पोएट्रिस्तान. तो आ जाओ स्टेज पर
मिलते हैं। Our first contestant, our contestant for the day. Give a huge round of applause, give a lot of love, and welcome on stage, Darpan Chandalia! नमस्कार, मेरा नाम दर्पण चंडालिया है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ जिसका शीर्षक है फलक की आरज़ू। फलक की आरज़ू बेसिकली एक फलक का धरती के नाम एक प्रेम गीत है। तो आगाज़ करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस और फाइनली ज़मीन का जो उत्तर रहेगा। तो आगाज़ करते हैं। है फलक की आरज़ू की कोई गुफ्तगू तो हो, इतनी गर्द सह चुका हूँ कोई गीत तुम कहो। है फलक की आरज़ू की कोई गुफ्तगू तो हो, इतनी गर्द सह चुका हूँ कोई गीत तुम कहो। आँख कागज़ी है कोई नमी नहीं, और तुझ में लहरों की भी कोई कमी नहीं। वाह। इतने वादे कर चुका हूँ तुझको हिचकियाँ तो हो। है फलक की आरज़ू की कोई गुफ्तगू तो हो। अब जो आइस ब्रेकिंग सेशन है वो कैसा रहता है। था पूछा हाल मौसम का, गुलों की चुगलियाँ भी की। था पूछा हाल मौसम का, गुलों की चुगलियाँ भी की। ज़मी के ज़ख्म सुने होंगे ये बादल तब भरा होगा। ये चस्का कांपते हाथों को चिंगारियों का तब से है। ये चस्का कांपते हाथों को चिंगारियों का तब से है। फलक ने धरती की पायल को जिस दिन छुआ होगा। है उरूज का सुरूर तो अलग ही हम नफस। अब ये फलक का आउटराइट इकरार है उरूज का सुरूर तो अलग ही हम नफस। मेरे बुद्धू से लतीफ़ों पे जो दे ज़रा तू हंस। सितारे कह दें जो चांद से कहीं नहीं, तू चांदनी की ओढ़नी में है सजी हुई। हो भीगने का मन तेरा तो बादलों को गुदगुदी करूं। है फलक की आरज़ू की कोई गुफ्तगू तो हो। अब ज़मी का फाइनली इस पे जवाब सुन लीजिए। है नीयत साफ अश्कों सी, है नीयत साफ अश्कों सी, तू मेरा आईना हो जा। मैंने बस राख देखी है, तू मेरा मायना हो जा। वाह। मैंने बस राख देखी है, तू मेरा मायना हो जा। है रंगों की दिवाली कोयल की है कूक तू और मैं। है रंगों की दिवाली कोयल की है कूक तू और मैं तेरी हीर हूँ पगले, तू मेरा रांझना हो जा। बहुत बढ़िया, That's my time. बहुत Thank बढ़िया you. दर्पण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्पण की वाइफ इज इन द ऑडियंस। यस, ओह या, आई कुड टेल यू आर द वाइफ बिकॉज इतनी खुश हो रखी थी और गुदगुदी वाली लाइन पे तो शी वाज लाइक ओह माय गॉड। She knew all the dance steps also. Yes, yes. So, I love how you met your wife. You met her at your ex's wedding. Yeah, तो she was an old friend Please of give him a mine. huge round of applause. पहली बात वो अपने एक्स की वेडिंग पे गया, दूसरी बात वो शादी पे जाके अपनी बीवी ढूंढ के लाया। That's the real revenge done right. And you proposed to her on the third day of meeting her. Yeah, and I got rejected. Of course you did, bro. Obviously, then I actually by now I maintain an Excel file for the time of rejections she has given to me. The same person. Hilarious. तो पहले 6-5 Perseverance. बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियर सर। For all the civil engineers out there, भाई है तुम्हारा। तो पहले तीसरे दिन रिजेक्ट हो गए ऑब्वियसली, और उसके बाद और परस्यू किया। परस्यूएंस के चक्कर में बॉम्बे आ गए उनके पीछे पीछे। मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा। तो उसके बाद नौकरी ढूंढ ली, नौकरी करने लगे। फिर उन्होंने बहुत अच्छे दोस्त की तरह बॉम्बे घुमाया। तो 6 महीने में फिर थोड़ा सा जादू चला और ये मान गए। मॉनसून टाइम। उसके बाद 1 साल इनके फैमिली को मनाया। मैं राजस्थान से हूँ, मैं जैन कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, और ये उत्तराखंड से गुर्जर कम्युनिटी को बिलोंग करता है। अच्छा जी। तो खैर डिफरेंस तो काफ़ी वाजिब है। तो 1.5-2 साल की मशक्क़त के बाद अब बहुत बढ़िया है।
भाई आप एक बात बताओ भाई, आप हिंदी तो ऐसी बोलते हो ना, कसम से मेरे दांत में दर्द हो जाता है। मैं, आप समझ रहे हो, इस पैनल में एक मल्लू आदमी, एक बंगाली आदमी बैठा हुआ है, हम दोनों एक दूसरे से वो जब पोएम भी कर रहे हैं, इस शब्द का मतलब क्या है भाई, इसका क्या मतलब, यही करे जा। बट आई जस्ट वांट टू गिव अ शाउट आउट टू हर कि मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, तो वहाँ इतना ओपन माइक्स वगैरह का कल्चर नहीं है ना, इतनी राजस्थान में कहाँ से हो? उदयपुर से हूँ मैं। अच्छा, उदयपुर से हो जी। तो वहाँ, यहाँ पे बॉम्बे में भी फर्स्ट जो ओपन माइक किया था मैंने, उसमें भी अंजलि वाज देयर, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। आई थिंक शी हैज बीन अ कांस्टेंट सपोर्ट। Let's hear it for Anjali. Let's hear it for Anjali. So beautiful, so beautiful. Are we ready with the song? All right. Let's move the mic and let's do this. Anjali, this is for you. है ना दर्पण? बहुत बढ़िया. Give him a huge round of applause. Yes. क्या बात है, क्या बात है. What a poetic dance. आपने नाच के प्रपोज किया होगा पक्का भाई. आई एम सो श्योर. मैम, बट आपको इतना टाइम लगा क्यों? ये आदमी करे क्या? और पोएम भी लिख रहा है, नाच भी रहा है, गा भी रहा है, सब कुछ ही तो कर रहा है. और जान, लाइक ये तो पूरा. हाँ मैम, आपने रिजेक्ट क्यों किया इतनी बार? वैसे थर्ड डे था, टू बी फेयर. 3 दिन ही हुए थे और उसी की एक्स की शादी थी. तो आउट ऑफ शेयर पोलाइटनेस ही थोड़ा तो मना करना बनता ही है. Wait. I want to know, how did you know the ex? Oh. Wait a second. Were you her manager or something like that? Because that would be the ultimate revenge. अच्छा. Yeah, actually she became a friend later on. So we were together बहुत साल पहले. Then she became a friend and then she realized that हम ऐसे ही सिविल इंजीनियर तो अकेला ही मर जाएगा. So उसकी शादी पे उन्होंने काफ़ी मेरे लिए हेल्प की थी कि चलो एक काम करो. लड़की ढूंढने में? Yes. वाह. तो उन्होंने कहा कि मेरी एक्स हो तो ऐसा हो. yes, मेरी दोस्त आ रही हैं, तुम कोरियोग्राफी करो. और कोरियोग्राफी में फिर थोड़ा हुनर दिखाने का मौका मिल गया. We can see that. You connected Through through choreography. dance. आपने डांस कर She's दिया? a भारतनाट्यम dancer. Oh my God. Wow. भाई तुम लोग की घर में लड़ाइयाँ ऐसे डांस बैटल होती है? तुमने मुझे ये कहा. I love it. एक डांसिस्तान भी शुरू करना पड़ेगा हमें. डांस इनके डांस मूव में एक पॉइंट ऐसा था where I think you were holding somebody in your head. Yes. So obviously you were holding her. Or was it the No. Yeah, of course, Anjali. बाद में बात करें. बाद में Let's take it offline, guys. 2-3 कविताएं लिखी है उनने पुराने जख्मों के बारे में. मतलब अदरवाइज क्लियरली यू आर अ वेरी रोमांटिक पर्सन. आप गा भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, और फिर भी आपका पोएम का जो थीम था वो बहुत ही इट वाज टुवर्ड्स लाइक मतलब द स्काई सेरेनेटिंग, मतलब वो पूरा अर्थ, एंड आल्सो इट्स अ वेरी गुड टू see that much of like versatility or something in you. So I'm very impressed with your overall vibe. आपकी overall vibe भी बहुत ही मजेदार और pleasing सी है. So really good stuff. एक चीज मैं बस पूछना चाह रहा था, आपने यहाँ पे लिखा है कि
both your parents had written a few books of poetry. जी. And तो आप उनसे ही काफ़ी इस सिचुएशन में आप पे भी थोड़ा प्रेशर था क्योंकि आप बेसिकली तो एक काइंड ऑफ पोएट घराने से ही हुए. जी 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 एक्चुअली मेरी वही जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी है, तो मेरा यही हुआ कि आई थिंक मैंने बचपन से किताबें ही देखी हैं घर में. मेरे फादर इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और मम्मी हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, और उन्होंने दोनों ने कविताएं लिखी हैं हिंदी एंड इंग्लिश में. तो मैंने बचपन से बाकी पोएट्स के साथ उनकी भी किताबें पढ़ी, और जो पहली कविता मैंने कहनी चाही वो उनकी ही एक कविता का मैंने ऐसा एक मम्मी की पोएम ली, एक पापा की ली, उनको मिक्स मैच करके कुछ खिचड़ी कर दी. बढ़िया. एंड देन आई शोड इट टू माई फादर कि देखिए दिस इज़ माई ऑथेंटिसिटी. फिर उन्होंने बताया कि तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी, कि उन्होंने बोला बहुत क्लियरली कि रादर देन कॉपिंग समवन्स आर्ट एंड है ना, आप अपनी एक वॉइस ढूंढो जिसमें भी आपको भी वक्त लगेगा. सो दैट इज़ हाउ आई फाउंड आउट माई ओन वॉइस. तो ग्रेजुअली मैं 11th 12th से लिख रहा हूँ. मेरी एक किताब भी है, और उसको 2023 में राजस्थान साहित्य अकेडमी का एक युवा पुरस्कार होता है. क्या बात. तो वो मुझे मिला है 2023. शुक्रिया. आपने वो पुरस्कार ऐसे एक्सेप्ट किया था? मैं तो जा ही नहीं पाया सर जी. अरे यार. सरकारी चीजें छोड़ो, एक और आप पे बैन आ जाएगा. आप करते क्या? What do you do for work, Darpan? आई एम अ सिविल इंजीनियर. Oh, अच्छा, civil engineer. Sorry, I forgot. 8 बार बता Yes. चुका है बेचारा. He started with for all the civil engineers. ऑडियंस में भी था तब भी बता रहा था सिविल इंजीनियर. यूजुअली इंजीनियर्स कभी इंजीनियर्स रहते नहीं है. कोई कॉमेडियन बन जाता है, कोई पोएट बन जाता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बन जाता है. इसलिए या गंजेड़ी बन जाता है. हाँ? गंजेड़ी. या ओके सिमर. मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा अलग है तुम लोग से. तुम लोग बहुत पॉश हो. Let's hear what Sid has to say to Darpan. So I really liked the dance. मुझे लगा कि एक तो कॉन्फिडेंस लगता है to say कि हाँ मैं I will dance when you didn't prepare for it. Second confidence is to select a slow song. Yeah. I always feel that okay, fast song में कुछ ना कुछ तो हो जाता है, but you selected a slow song and then you killed it. Thank तो you. आपका Thank you poem so तो much. बढ़िया ही था, but I was very impressed by the dance. Thank Well done. Just वही मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा भी है, the biggest regret of your life is to not take literature professionally post 12th class. Yes. And you're 23 only, right? No, I'm not 23. I'm 33. You're 33. But in any case, the point being that I tried to be as smooth as I could about that. Okay, fair. But आप अभी देखो, आप मतलब you're really very gifted with a lot of things. तो you are in Mumbai. तो मतलब you can do whatever मतलब आप करते रहो यार. मतलब बढ़िया. I would love to, and I really like your vibe also. आप बहुत ही real लगते हो. हाँ, तो मतलब it's just nice to see that. So yeah. मतलब in a way he's trying to say कि civil engineering छोड़ दो. नहीं भाई, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा यार. आजकल ये पैशन के चक्कर में जॉब छोड़ना बहुत ही घटिया वो है. फालतू नहीं, कुछ नहीं है. एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग भी मैंने एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तब भी टेकअप किया था, एंड मैं कंटिन्यू भी करूँगा. देश को बनाना भी ज़रूरी है, और मैं ऑनेस्टली मानता हूँ एक ही तो दिल है ब्रदर, कितनी बार जीतोगे. यार अभी तो पॉलिटिक्स में घुस जाना, वोट मिल गया आपको. अंदर का नितिन गडकरी अभी निकला ना आपका भाई. मैं बस एक बात गाना मिला रहा है फिर ये. मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम हमारे आर्म्ड फोर्सेस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जी. करनी भी चाहिए, जाहिर से बात है. बिल्कुल. वो भी बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हैं. बट सिविल इंजीनियर्स का यूजुअली क्या होता है कि लोग उन्हें ऐसा मिस्त्री और दे कॉल देम बाय नेम्स, बट दे ऑल्सो हैव टू लिव इन वेरी एक्सट्रीम सिचुएशंस. जी, जी. इवन आई हैव डन दैट फॉर 6-7 years नाउ. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स होती हैं जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दैट, ऑल एवरीवेयर यू विल फाइंड सिविल इंजीनियर्स. सो I took up that job because the first internship I got was in Atomic Power Project of Rajasthan. अच्छा. So it's a beautiful sight to see any engineer if they ever want to take it up. ठीक है, मैंने काफी पब्लिसिटी कर दी है. But yeah, इतना सब कुछ बोल चुका है ना. अब जजेस इसको क्या जज करेंगे. यही मार्क्स जज अगर कम मार्क्स दे, जज हो जाएगा. भाई तुम कैसे कम मार्क्स दे दिए यार तुमने. This is the first time I think a civil engineer has actually talked about these things, because people don't talk about it. So it's very refreshing. Thank you for saying that. Yes, big round of applause, guys. Give it up for civil engineers. Yeah, dude. मैम मैं एक छोटी सी कविता 3 लाइनों की जी. अंजलि के लिए कहना चाहता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. अंजलि स्टेज पे आ जाओ. चलो आ जाओ. Give a huge round of applause to अंजलि. रूबरू होके आप कविता सुनाए उनको, अच्छा लगेगा. हाँ, कंपटीशन का तो जो होगा होगा. मेरी वाइफ तो यहाँ है. या ये जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम यही है. यस भाई आपकी लड़ाइयों में अगर वो जीतता है वैसे बोलते हो कि अंजलि इज अ चीटर.
देखो भाई भाई तू क्या कर रहा सॉरी है? भाई तू कुछ माहौल breakup देख के करवा बोला के कर रहा है। रहेगा ये लड़का। थोड़ा सा ओवरऑल रूल जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि वो गुर्जर हैं और उनके घर में बंदूकें हैं। मैं पता है मैं बाय द वे मैं दिल्ली से हूँ। अगर जो दिल्ली से है ना वो जानते हैं कि गुजर क्या होते हैं, कितने खौफ में हम गुजरों से। तो भाई तुम्हें तो ऑलरेडी मैंने इज्जत दे दी थी कि भाई गुजर फैमिली में तुमने मना लिया, बहुत बड़ी बात है भाई। मैम आप बेस्ट हो। तो कोई भी जो भी यहाँ से किसी और शहर से आया है या छोटे शहरों से आया है, तो सबसे मेजर जो डर होता है ना कि नए शहर में एक घर ढूंढने का या एक सेफ स्पेस ढूंढने का। तो जैसे ही मैं यहाँ आया था ना, तो शी वॉज द वन हु प्रूव्ड कि किसी बड़े शहर में भी एक सेफ स्पेस क्रिएट होता है। तो उसी के लिए लिखा था कि हो इल्म बेघरों को रैन बसेरों का, वाह हो इल्म बेघरों को रैन बसेरों का, उस चांद की भी तो कोई ज़मीन हो। आहा, क्या बात है, क्या बात है। तुम आया करो ना छत पे कभी शाम को यूं ही, तुम आया करो ना छत पर कभी शाम को यूं ही, मेरी चिट्ठियों को कभी तो उनके पते पर यकीन हो। ओहो हो, वाह 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 वाह। और गीली सड़क, आज जैसे बारिश हो रही है जी। तो गीली सड़क, भीनी बारिश और कार की पिछली सीट पर तुम्हारी एड़ियों पर टिका चांद हो, बस इतनी रोशनी। Oh my God, I love it. गुलजार साहब, वाह वाह। Thank you so much for giving me this much time. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Give him a huge Give it round up, of give it up applause. for And to Darpan and Anjali, Anjali. the muse. Yes. बहुत cute यार। Beautiful, beautiful. Thank you, Anjali. You can go back. Darpan, you stay. Let's do the scores. Yes. Judges, are we ready with the scores? All right, we have a 9. Let's We have a 9.15 and we have a 8.7. Give it up for Darpan. I love how the lowest marks were given by the guy कि ये बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा है यार ये। इतना क्या रोमांटिक होना है यार। नहीं भाई, वो उनने एंड में बोला ना उनके घर में बंदूक है, तो जजेस थोड़े Okay, cool. Let's keep it going. Let's give it up for our next act. Yes? Yes. Give a huge round of applause. Give a lot of love. And welcome on stage, Jagriti Kothare! हेलो, माय नेम इज़ जागृति और मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ, लेगेसी ऑफ लव। जेनरेशनल ट्रॉमा के ज़माने में मुझे विरासत में प्यार मिला है। अपने आसपास की औरतों से उड़ने के लिए आसमान मिला है। बहुत बढ़िया। गहरी थी दर्द की जड़ें उनके लिए, पर मुझे दुआओं की छाँव मिली। वो थी खामोश भले, पर मेरी कहानियों को आवाज़ मिली। सन्नाटों में दब गई चीखें उनकी, पर मेरी आह में भी गूंज उठी। माँ ने हथेली पर उम्मीद रख दी, दादी मेरी आंखों की आग बनी। सास में माँ का प्यार मिला, जेठानी मेरी दोस्त बनी। नानी ने सहेजा अपना पूरा बचपन, बहन मेरी ढाल बनी। सबकी दुआओं में मुझे मेरी पहचान मिली। वाह। खोल दिए पिंजरे सभी, खोल दिए पिंजरे सभी, उड़ने को नई राह मिली। ख्वाब जो अब तक सारे कैद थे, उन्हें खुली हवा मिली। कदमों की बेड़ियाँ टूटी, कदमों की बेड़ियाँ टूटी, हौसलों को नई उड़ान मिली। अंधेरों के इस दौर में उम्मीद की सौगात मिली। कहानियाँ सुनी, कहानियाँ सुनी, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कल्पना चावला तक की। मेरे मन में भी आग लगी, मैं भी कुछ ऐसा करूं, मैं भी एक मिसाल बनूं, जो बदलेगी कहानियाँ, वो एक आवाज़ बनूं। वाह। एक कदम बढ़ाया आगे, एक कदम बढ़ाया आगे, तो सीढ़ी तैयार मिली। पिंजरा तोड़कर, परों को फैलाकर, मैं चली एक राह बनाने, जो विरासत में मुझे मिला अब सब तक पहुंचाने। जेनरेशनल ट्रॉमा के ज़माने में मुझे विरासत में प्यार मिला है। अपने आसपास की औरतों से उड़ने के लिए आसमान मिला है। Thank बहुत you. बढ़िया, बहुत बढ़िया जागृति। So good, so good, so good, so good. जागृति, बहुत बहुत प्यारी कविता है एंड आई लाइक दैट इट इज़ वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, है ना? देख के अच्छा लगता है, सुन के बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। टेल मी अबाउट दिस वन वुमन हु हैज़ रियली इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ। I think it would be my mother and my mother-in-law both. अरे They हाँ, have- सास वाली लाइन, आई लाइक दैट। yes. हाँ So they have been an inspiration for me. हाँ। And I had an arranged marriage. So when first time I met the whole family, and I was like
this is the kind of warmth that every girl should get from her in-laws. So sweet, And my mother, yeah. she has always been a rock. Whenever, even if I'm late from my college, हाँ. from day one till she was always like, ठीक है मैं पापा से बात कर लूँगी. हाँ. And she was always there to support me. अरे So I वाह. think my mother and my mother-in-law. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. I like it when girls always you say mother-in-law as well. Mother-in-laws ये सब देख के बहुत खुश होती हैं. वो कहती है वाह मेरी बहू सबसे अच्छी है. इसीलिए तो कहना पड़ता है. इसी ठीक है. आपको कैसी लगी अभिजीत? आप It was बताइए. very, very nice, very inspiring, and so just out of curiosity, is your husband also here Yes, right he's now? there. Yeah. Yes. Is your mother-in-law here? No, she's not here. The ठीक है. husband is here. I'm sure the video will reach her. Yeah. Husband is representing. हाँ ठीक है, good. So you got married and shifted to Mumbai. Yes, And आप इससे पहले किस शहर में थे? Delhi. दिल्ली से. अच्छा, मुंबई. अच्छा तो ये बता दो दिल्ली और बॉम्बे में से कौन सा बेटर है? Yes, we should ask. हाँ. अभी I दिवाली के think I टाइम तो like- यार हाँ, मुंबई दिवाली बोलेंगे. के टाइम पे it's always Delhi. Festivals and food is Delhi, but I think I like Bombay. as Pollution? well. It's okay. It's okay. Indians की गलती नहीं है. Pollution तो हम संभाल लेते हैं. हम ही बनाते हैं, हम ही संभाल लेते हैं. Delhi lungs have just become immune to pollution right now. कि बाहर आके हम थोड़ा ऐसा सुपर हीरो टाइप फील होता है. हाँ, super ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है उसके बाद. हाँ, फिर ऐसा लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है. Delhi गड़बड़ है ठीक ये था. तो. Sid. ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई बार लोग कविता को सिर्फ उस टाइम याद रखते हैं जब कुछ बुरा होता है. बट आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अ पोएम वेयर you are highlighting the positives, Thank you. right? Thank Like it's almost like a gratitude journaling जैसा लगा मुझे आपका poem और वो बहुत बढ़िया लगा. Wow. I love that mental health talk. Gratitude journaling by a Delhi girl. That's Chetan Bhagat's next novel. No, but dude, honestly, this is amazing. Like, I couldn't relate to anything you said because I don't have a sass. But I have Sasural. Yet. Sasural Simar ka is I have a sauce. I have a sauce. I still don't relate to anything. See, the thing is now, if you're from Delhi, the only sass you have is your husband's mother, not the sass. Cause Yeah, right. Okay. Oh God, I guess Simar. It was a joke, guys. ठीक है, but Someone said in the previous episodes that Simar should stop doing comedy. can you stop? Thank you, Jagriti. What a great note this to an ongoing start. joke across episodes only now? Yes. Do you agree Simar should stop doing comedy? After this joke, I think Thank you, there was no Jagriti. humor. Give me your सासू माल number right now. अभी लड़ाई कराते हैं. आपके सास और मॉम की बनती है क्या? Do they like each other? Yeah. Are you sure about Yes, that? yes. Like, I'm honestly very sure. speaking, this is the बाकी सब तो ठीक है, बट पहली बार मैं किसी को इतना ओपनली सास को अच्छा बोलते हुए सुन रहा हूं, तो थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है. इसलिए मैंने पहला पूछा हस्बैंड आया है क्या? हाँ तभी तो बट नहीं नहीं. भाई ये सच बोल रहे हैं या फिर? You hope. आपकी सास करती क्या है? She's a homemaker. She's a homemaker. She's a And homemaker. how has she been supportive towards you? If you can just. She's always given us the freedom to do anything we want and everything that we Nice, want. nice. Yeah. So me and my sister-in-law, we both are working. हाँ जागृति So आप क्या करते हो काम? I am a freelance writer with Pocket FM. अच्छा, okay, अच्छा. So we have been working. Whenever we are like कि मम्मी आज काम थोड़ा ज़्यादा, so she'll always don't worry about the work. सब हो जाएगा. Don't. And yeah, she really wanted to come today, but my sister-in-law just delivered. So Oh, congrats. Congratulations. अच्छा जागृति, tell me something. हमने आपसे पूछा tell us about your last breakup. आपने कुछ नहीं लिखा वहाँ पे. because I have. अच्छा अभी हुआ, कभी हुआ ही नहीं है breakup. I was about to say अभी हुआ नहीं है breakup, then I realized she's married. I think we should send the husband out for some time. So we पति can बाहर गया, सास चुड़ैल है. पिछला ब्रेकअप इतना घटिया था, तभी रिबाउंड में शादी कर ली मैंने. Abhijit is going through something. भाई आप बताओ अपनी शादी के बारे में. I have a lot of feelings, guys. I'm a sleep deprived father right now. 3 घंटे का नींद मिलता है मुझे दिन का, तो तो यार. हमारी क्यों नींद उड़ा रहे हो ये सब बोल? I like that Jagriti. You should start doing stand-up comedy. भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ भाई, मेरा हो गया भाई. What was the worst advice that some career counselor gave you? I think किसी भी करियर काउंसलर ने अच्छी एडवाइस दी नहीं, सबने सिर्फ पैसे लिए थे. Weirdly, am I the only one? मैं तो किसी करियर काउंसलर के पास गया ही नहीं. तो That was चलता है fun. अभिजीत. That's why you're a stand-up comedian. इसलिए कपिल शर्मा आपके जोक ले रहा है भाई. सॉरी भाई. मैं भी नहीं गया एक्चुअली, इसलिए मैं कॉमेडी छोड़ रहा हूँ. बट अच्छा हस्बैंड के लिए आपने कुछ लिखा है अपने, कभी कोई प्रेम कविता?
Not exactly, but I just wrote a आई लव के letter. हस्बैंड के लिए कुछ लिखा, सास के लिए लेकिन पूरी पोएम है उनके पास. No, हाँ? I Who does wrote not a write letter, about a husband but letter. writes about sass? She got married Jagriti. because of the SARS, bro. No, I actually wrote a letter, like a letter to my husband, हाँ. and I poured my feelings in that. कि Nice. मतलब how am I and how I expect you to be and how can I be? तो उसका एक तो वो- हाँ, pros and सुनाओ cons ना. की बिग बैंग थियरी में एक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट करके है. दिस इज साउंडिंग अ बिट लाइक दैट. pros and cons list कि भाई तू ना ध्यान से रही हो, ऐसा कुछ लग रहा है. जागृति, इज इट पोएटिक? आप सुना सकते हो हमें उसकी No, कुछ लाइनें? I don't remember it actually properly. I'm really sorry. इसको याद भी नहीं है उसने क्या लिखा था. देख रहे हो आप कितने साल हो गए इस शादी को? लिखा था आपकी हाँ? माँ बहुत अच्छी है. January में 2 साल हो जाएंगे. 2 साल हो जाएंगे. हाँ, उसमें सास के बारे में तो लिखा होगा, है ना? आई कैन गारंटी Dude, this दैट. is चलो so गुड. cute, man. I love this. Yeah, I but genuinely honestly, love this. it's really nice to hear such positive things around the sass and all jokes aside because it's very rare. Yeah, but no, my Mostly sauce is it's- also amazing, Abhijit. Who? What? My mother-in-law is absolutely amazing. Is your husband too. also here? Oh, this is being recorded. Okay, fine. But you know, can I just say, from a more social perspective, अब ये जो stereotype and talking about stereotypes, वो जो stereotype होता है ना सास का, अब वो बदल रहा है, right? Yeah, Because I agree. like even for me as a boy mom, like I would want to be friends with my daughter-in-law, right? Because ये चीज़ अब और ये generation में already break होने लग गया है. हाँ. There are some amazing mother-in-laws out there. और अगर आप में से कोई भी boy moms हैं, I hope you will end up becoming an amazing mother-in-law as well. Reddit तो ऐसा नहीं कहता है. Reddit तो बिल्कुल उल्टा कहता है. Yeah. But to be just fair and obviously, but it's a very different thing towards sass towards damads. Yeah, Because very दामादों को इंडिया में बहुत ज्यादा इज्जत मिलता है. मुंह खोलते ही खिला दो ऐसा गला पूरा feeling That होता है. sounded so wrong. Sass towards daughter-in-laws is generally a very different. It's nice to see positive stories and everything, but it's a very different sass damad and sass daughter-in-laws. That's why it's great to hear this Thank you. from you. Yeah. Scores for Jagriti are 8.5, 8.5. and we have 7.89. Amazing. Give it up for Thank Jagriti, everybody! And her mother-in-law. Awesome. We have a special act for you guys. We have all these amazing contestants who've come from all over the country to perform. But we also thought it would be great to get a poet, a performer who we've all seen, who we all love. So we have a surprise act for you guys. You guys have seen him on India's Got Latent. He is a very saaf bhasha wala, बहुत ही सुंदर कवि. Give it up for Keshav Jha! हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया? कोई नींद में तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है तब फिर कविता में आनंद आएगा. तो कविता कुछ इस प्रकार है कि यूँ दिन भर थक हार के दफ्तर से घर लौटूँ तो कोई हाथ धरे, एक चाय की प्याली हो, कोई समक्ष बैठे मेरे और मुझसे कुछ बात करे. वाह वाह वाह. एक चाय की प्याली हो, कोई समक्ष बैठे मेरे और मुझसे कुछ बात करे. मैं भी उसको कुछ बतलाऊं, वो भी मुझको कुछ बतलाए. मैं ना उससे आँख चुराऊं, वो ना मुझसे आँख चुराए. वाह. मैं भी उसको कुछ बतलाऊं, वो भी मुझको कुछ बतलाए. मैं ना उससे आँख चुराऊं, वो ना मुझसे आँख चुराए. लट जो उसके मुख पर आए, हाथों से उसको सुलझाऊं. ओहो. लट जो उसके मुख पर आए, हाथों से उसको सुलझाऊं. वो जो थामे हाथ मेरा, फिर ना मैं किससे हाथ छुड़ाऊं. अच्छा तुम्हें पता है आज क्या हुआ? ऐसा कोई कहे मुझसे और फिर बातों की शुरुआत करे. एक चाय की प्याली हो, कोई समक्ष बैठे मेरे और मुझसे कुछ बात करे, और मुझसे कुछ बात करे. बहुत धन्यवाद. बढ़िया केशव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यू आर सो रोमांटिक. आई लव इट. हाउ ओल्ड आर यू? मैं 20 साल का हूँ. ये क्या प्रिया सबके रिश्ते कराती है Why भाई. was it such a mom kind of? बहुत बढ़िया. I am a mom. नहीं, क्योंकि मैंने इनको लेटेंट में देखा है और आप लोगों ने इन्हें लेटेंट में देखा है. यस यस. और इनकी वो जो कविता की एक लाइन थी जिसके बारे में हमारी बात हो रही थी, जिस जो है तपते तन के तपोवन में तरुण. या सो आई फेल्ट सम सिमिलैरिटीज कि
तन के तपोवन। ऐसा लग रहा है बीच बीच में ना पेट के नीचे सबटाइटल लाना चाहिए। No, but I really want to know, Keshav, do you have a girlfriend? नहीं। तभी इतना love the romantic pause. है ये. Where are you You see going what I with this, mean? Priya? That's why he's so romantic, because it's a love poem. So it's who's the muse? किसके लिए, किससे प्रेरित होकर आपने ये कविता लिखी है? बस जब किसी के ना होने से? नहीं, जब ये हाथ में कलम उठाता हूँ तो अपने आप हो जाता है, लिख लेता हूँ। I love that. I love that. बहुत बहुत प्यारा लिखा है और बहुत सुंदर लिखा है, and domestic life को जो आपने रोमांटिसाइज किया है, I love हाँ, that. मुझे लगता है जो अभी जो हम लोग एज में, अभी मैं प्यार के बारे में जो बताया वो शादी के बाद, तो आप लोग सोचोगे अभी 20 साल का है और कोई चाय पीना है इसको किसके साथ, तो शादी के बाद वाली बात अभी से कैसे बता रहा है ये। तो इसलिए आपको बता दूँ, ये मुझे ऐसा लगता है जो शादी के बाद ना मर्द को बस इतना चाहिए होता है जो कोई शांत से सुने, क्योंकि शादी के पहले भी बहुत टेंशन होता है लड़कों को, करियर का, फैमिली का, सबका। तो ये आपको कैसे पता लेकिन? यार मतलब हम लोग क्या नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, बट हाउ डू यू नो दिस? ये जो एज होता है ना, अभी जो मैं फील कर रहा हूँ, जो बहुत सारी जिम्मेदारी है सर पे। फैमिली को देखना है, खुद का करियर अच्छा बनाना है, खुद भी अच्छा दिखना है समाज में। तो ऐसी ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो जितना जल्दी आपको समझ जाए उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक यू केशव, इनको आपने अच्छी बात समझाई। और बताओ जरा, मुझे थोड़ा बाप कैसे बनता है वो भी बता दे। लेकिन आपको जिंदगी में कभी प्रेम हुआ है केशव? हाँ, एक तरफा प्यार हुआ था। ओह, टेल अस अबाउट दैट। स्कूल टाइम में हुआ था एक तरफा प्यार। मतलब 2 हफ्ते पहले भाई। नहीं, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। अरे भाई, और crazy। कविताएं लिखना आपने तब शुरू किया था? कविता- Because that's what happened with me. जब मैं पहली बार मुझे जिंदगी में प्रेम हुआ था, मैं 12 साल की थी। हाँ। And that's how I started writing poetry. नहीं, उस टाइम तो लिखना चालू नहीं किया मैंने, कविताएं 2 साल से लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, But अच्छा। like bro, like you're an inspiration for a lot of young people, right? Because आप बॉम्बे से हो। हाँ। बॉम्बे में आजकल बहुत लोग लिखते हैं। A lot of us get inspired by watching reels, content on YouTube. Your language is very refined. You're studying masters. आप हिंदी पढ़ हाँ, रहे हो। अभी मतलब your first year journey is very different. So you're a very big inspiration for a lot of I agree, young people. और आप definitely. इनके लिए भी inspiration हो जो आपने शादी के बारे में बात की है। मुझे पता चला। तो मेरे को ये जानना है कि मतलब हाउ इज दिस विजडम, लाइक आपके फैमिली में कोई है? नहीं, फैमिली में कोई नहीं है। मैं फैमिली में पहला आर्टिस्ट मैं ही हूँ जो आर्ट परस्यू कर रहा हूँ। बट ये कहाँ से आता है विजडम? मतलब ओशो के लेक्चर सुनते हो या सदगुरु। बाइसेप्स मतलब? You're an old soul. मतलब एक अंदर वो है, wisdom है आपके अंदर जो अच्छा लगता है देखकर। नहीं, बट ऐसे ही होता है, पहले थियरी होता है फिर प्रैक्टिकल होता है। आई लव हाउ वी आर लाइक, आप सीखेगा बाद में पता चलेगा चलेगा, अभी बोलने जो बोल रहे बेटा। सही है भाई। बट मुझे Brought it लगा out. किसी के साथ तो चाय पी है आपने, और किसी ने तो पूछा कैसा गया तुम्हारा नहीं, मैं दिन बॉर्नवीटा आज? वाला दूध पीता हूँ। मुझे चाय नहीं पसंद आती। एंड इट्स गॉन। Give him a huge round of applause. नहीं, बॉर्नवीटा वाला दूध पीकर चाय के बारे में कविता लिखी भाई है। तो बॉर्नवीटा के बारे में लिखना। बॉर्नवीटा की प्याली लेके आएगी वो। वो तन की गरम शक्ति, गरम बॉर्नवीटा में चम्मच घुमाएगी वो। नहीं, उससे तन की और मन की शक्ति बढ़ती है। अच्छा, तो कविता में काम आता है। सुन रहे हो आप लोग? तन की और मन की शक्ति। भाई मेरे को लग रहा है केशव शादी के बाद ना सुहाग रात में वो हल्दी दूध की जगह बॉर्नवीटा। How do I take marriage advice from a person? That's just jokes, yeah. But thank you so much केशव, बहुत प्यारा लिखते हो। Please give him a huge round of applause. Yes. इतनी कम उम्र में इतनी गहराई वाली बात आपने जो लिखी है, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सुंदर मेरी लिखा जो है। लैंग्वेज है जी। मेरी जो लैंग्वेज है वो मैथिली है, लेकिन भोजपुरी में मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी थी। सुनाइए। सब देखते हैं जो भोजपुरी को लोग बहुत ट्रोल करते हैं, ये लैंग्वेज कैसे, लेकिन मैं आपको उस लैंग्वेज की मिठास बताना चाहता हूँ कुछ 4 लाइनों में। इरशाद। कि कुछ इस तरह है कि तोहरा से दिल लगाई के हो गई नी मतवारा हो, वाह। तोहरा से दिल लगाई के हो गई नी मतवारा हो, बस तोहके चाहे ई दिल कैसन बा बेचारा हो, ओहो। हमरा केहू ना सहारा हो,
केहू ना सहारा। और कुछ सुनिए कि हियरा में बा हलचल रामा, हियरा में बा हलचल रामा, अखियन में बस तू ही बाड़ू। ओहो। हियरा में बा हलचल रामा, अखियन में बस तू ही बाड़ू, फुलवा के जैसन मुस्की बा, बन जा तू हमरी मेहरारू। ओहो। फुलवा के जैसन मुस्की बा, बन जा तू हमरी मेहरारू, तू जो हमके ना मिलबू त कैसे होई गुजारा, हमरा केहू ना सहारा हो, केहू ना सहारा। जिसे समझा उनके लिए अच्छा, जिसे ना समझा वो गूगल कीजिए। धन्यवाद। Love it, love it, love it. I hope your future Mehraru is listening to this. Thank you so much for sharing your With wisdom Bonvita with in our us. भाई आज के बाद तो सिड बॉर्नवीटा ही पीने वाला है भाई। थैंक यू सो Thank मच। you, गिव इट भाई। अप गाइस केशव के लिए फॉर तालियां। केशव झा। यस, थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो केशव। मच। What's Wow, dude. the weird thing for me was कि somehow मेरे को बहुत बार हिंदी शब्दों में मैं पूछ रहा एक दूसरे, भोजपुरी मुझे सब समझ में आई। I was like, wow, this is good, yeah. This is... Oh, that's a problem, Abhijit. I had a joke incoming, but I'll keep it offline. Offline. Awesome. Should we keep it going? Yes? Yes. Yes. All right. Let's give it up for our next contestant. Give it up for Sanskriti Singh. Keep it going for Sanskriti. Yes. जोर से तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। शुरू करें कविता। जी। तो मेरी कविता का उन्वान है छत, और मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। 1 मिनट। मैंने तुम पर लिखी एक कविता तुम्हें भेजी है, और अब मैं निहार रही हूँ अपने छत को, जैसे हो वो ब्रह्मांड की आखिरी परत, जैसे वक्त चलता गया हो और इंतज़ार में बचा हो केवल प्रेम, जैसे लोग दीवारों से चले गए हों और दीवारों पर अब भी ऊँघता बैठा हो छत। वाह वाह। छतों पर लिखना भी कितना मुश्किल काम है, जैसे लिखना हो किसी छूटे हुए प्रेमी को पत्र, और अपने घर के छत के बारे में लिखना तुम्हारी याद में चादर ओढ़ लेने जैसा है, सरल और सुखमय। जिए हुए छतों को निहारा नहीं जा सकता, उन्हें बस लिखा जा सकता है। इसलिए मैं अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन या यूक्रेन के छतों के बारे में नहीं लिख सकती, मैं सीरिया और लेबनान के छतों के बारे में नहीं लिख सकती। जिस घर में बच्चे और बंदूकें एक ही छत को ताकते हों, मैं उन छतों के बारे में नहीं लिख सकती। उन छतों के नीचे ठिठुरते हुए मैं नहीं निकाल सकती उनकी तस्वीर। वेदनाओं को उनके समूचेपन में लिखने का अर्थ है उनका समाप्त हो जाना। इसलिए तुम्हें भेजी हर कविता से मैंने चुरा लिए हैं शब्द। जैसे औरतें झट से बागी नहीं बनती, वो लोरियों को आधा छोड़ कहीं चली जाती हैं। बहुत बढ़िया। जैसे औरतें झट से बागी नहीं बनती, वो लोरियों को आधा छोड़ कहीं चली जाती हैं। जैसे कुछ बच्चे जानकर माँ बाप के बटुए का हाल नहीं खरीदते कुछ खिलौने। जैसे पिता रोटी सेकते हों सबके लिए और रह जाते हों थोड़े भूखे। ये बची हुई शुदान, अकेले हुए खिलौने, टूटी हुई लोरी, छोड़ी हुई कविता, ये सब मुकम्मल होने के इंतज़ार में हैं। जब तक इंतज़ार में हैं तब तक मुकम्मल हैं। ऐसे ही मैं तबाही परस्त लोगों पर नहीं लिख पाती, पर तबाही पर लिखती हूँ। जैसे मैं तय नहीं करना चाहती छतों से रेफ्यूजी कैंपों का रास्ता, पर मिस्मार हुई छतों की कहानियों में मैं बसती हूँ। वाह। तो ये कविता उस कहानी के लिए जो कभी पूरी नहीं होती। ये कविता उन ग्रेनेड ग्रसित छतों के लिए जो बचे रह जाते हैं लोगों के जाने या चले जाने के बाद तक। शुक्रिया। बहुत 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 बढ़िया संस्कृति। आई हैव टू टेल यू कि कभी कभार मेरी ज़िंदगी में मैं कोई कविता सुनती हूँ और मुझे लगता है कि यार ये मैंने क्यों नहीं लिखी, एंड दिस वाज वन ऑफ देम। इतनी डेप्थ, इतनी अच्छे से प्रेम कविता में आपने जो सोसाइटल फैक्टर्स लेकर आए हो ना, ये आसान नहीं होता। यू रिमाइंड मी ऑफ दिस वेरी लवली पोएट हु आई एम अ बिग फैन ऑफ, कॉल्ड बाबूशाह कोहली। आप कभी बाबूशाह कोहली की कविताएं पढ़ेंगे तो यू विल सी व्हाट संस्कृति इज ऑल्सो राइटिंग इज इट। वो छाप है आप में उनकी, बहुत प्यारा लिखती है, बहुत प्यारा। एक बार तालियां बजाएं इनके लिए, बहुत अच्छे। अभिजीत? No, that was very impactful, and some of those lines are very emotional as well. So, it was a seriously very profound moment. ऐसा वाला feel हुआ, very good stuff. Thank you. जितना मेरे को poetry का, I'm not much of a judge of poetry, but it was very impactful. Thank you, thank you. One line that stayed with me, that'll stay with me today, was the roofs where kids and बच्चे और बंदूकें एक ही छत को ताकते हैं। like, you know, right? It's not.
it's not weapons and kids under a roof. It's kids and weapons staring up at a roof, which is like such a beautiful thought. Like you can totally visualize that. Visual moment imagery and बहुत प्यारी है. It's Yeah, because I mean, again, I don't know much about poetry, but फिर भी ये जिस तरह से like the thing about it going from छत से romantic से suddenly the range exploding to so many things. It was अचानक से I was not prepared for it कि कहाँ चला गया भाई ये वाला feeling. Women. Yeah, it's super stuff really. I love that. तो आप That was part of the poem. What you just said. When she just said women. That felt like it was part of the poem. tell us about your toxic relationship. ये क्या हुआ था यहाँ पे last breakup उसे में? क्यों फेमस करना, वो स्कूल की बात थी. I love संस्कृति. मैंने भी इन्हें कपिल शर्मा की कहानी पे वही बताने की कोशिश की। ये लोग समझते नहीं, होना चाहिए कुछ कंटेंट निकले है। कंटेंट मिला था. कंटेंट मिला था. शुरुआत इससे हुई थी, बट ठीक है, हम आगे बढ़ गए लाइफ में. वो मीर ताकि मीर का शेर है ना, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या. अच्छा ही होता है जो होता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. What do you do otherwise? Are you a student or? No, I am not a student. I have just completed my masters in Hindi wow. this year, and currently working in the official language department kind of in PSUs. कहाँ पे? इधर मुंबई में? जी. अच्छा अच्छा, जी. बहुत बढ़िया. आपने बाबूशा को पढ़ा है? पढ़ती रहती हूँ ऑनलाइन, हम देखते रहते हैं उनका काम, तो ऑब्वियसली पढ़ा है मैंने. जी. But where did you get this idea for this poem? Like आपने छतों के बारे में लिखा है, ये आइडिया आपको याद है कहाँ से शुरू हुआ? ये लेखक के लिए सबसे बुरी बात है कि मैंने ये 3-4 साल पहले लिखी थी ये कविता, और ये आज तक रेलेवेंट है, तो ये सबसे बुरी बात है इसकी. बट ठीक है, तो आई थिंक द वॉर जस्ट had begun and I was very like मतलब 19-20 I didn't understand the politics. यहाँ की नहीं समझ में आती तो वहाँ की क्या समझ आएगी. तो उसके बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किसी को भी नहीं समझ आती. अब realness इंडिया की बात करें. इंडिया. तो that happened. तो but the visuals. महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में हैबिटेट में कुछ मत बोलो. मैंने इंडिया बोला है. प्लीज ब्रदर. So the thing was तो इंटरनेट की सबसे बुरी बात होती है कि बहुत बुरा भी है ना, तो आपको विजुअल्स मिलते रहते हैं. जी. And you can't get out of that loop. So I wasn't able to. So I wrote this. But do you usually write such intense stuff or do you also? मेरे पापा तो यही कहते हैं कि मैं डाक ही लिखती हूँ. हाँ. तो वही सच होगा. आपका एक क्वेश्चन ये जो what's the biggest regret of your life पे लिखा है. I'm just 23, so let's not use biggest and regret together as one. Yeah, and I think that's exactly. a fabulous response. It's amazing. That's I so love just wanted to point that out. sassy संस्कृति answers. बढ़िया लिखा है ये तो. आपके डैड हैं ऑडियंस में क्या? नहीं, उनका आज काम चालू है, तो वरना वो बिल्कुल होते. He is very. कोई आया है आपके साथ आज? दीदी, फ्रेंड्स. अरे वाह, अरे वाह. Give a huge round of applause to संस्कृति's family. ये वही दीदी है जिनने बोला था भूल जाएगी. मत ताली बजाओ इस औरत के लिए. बागी औरत. अरे वो आपकी जो लाइन थी औरतों के बागी होने के बारे में, वो बहुत प्यारी थी. एक बार फिर से सुनाएंगे? औरतें झट से बागी नहीं बनती, वो लोरियों को आधा छोड़ कहीं चली जाती हैं. वाह 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 वाह. तालियां तालियां. बहुत बहुत बढ़िया. ये सुन के मुझे ही थोड़ा हार्मोनल सा लग रहा है. तो विमेन को क्या लग रहा होगा? But that's true. आदमियों को इमोशन तो आएंगे उसकी वजह से. But that's true. I think we women have a slow burning rebellion which starts from birth, you know. And कोई झट से जया बच्चन नहीं बनता. There's a lot of. That just shows how less we can comprehend any of this. Our every imagination. time I try to be serious, these guys, मैं क्या करूँ? भाई कुछ तो रेखा बना के रखो यार. Nicely done, nicely. Hey, Simara's future in stand-up now. Thanks for the setup यार. Yes, done. Thank you so much, Sanskriti guys. Thank Please you. have your scores. Scores are already ready. We have a first 10. Give it up. 8.9 and 8.65. ठीक है दोस्तों, आज के शाम के हमारे कंटेस्टेंट लिस्ट में से जो आखिरी परफॉर्मर है, जो सबसे दूर से आए हैं, वो अमृतसर से आए हैं, तो उनको खूब तालियों से बुलाइए. गिव इट अप फॉर रक्षित कपूर. So everybody, hello. My name is Rakshit Kapoor and I'm from Amritsar
और मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ, मैं हैबिटेट में पहली बार आया हूँ और बहुत सी बातें करेंगे। अभी मैं कविता बोलूँगा तो आई होप एप्रिसिएशन। अंतिम परफॉर्मेंस है आज की, तो ठहराव दे करके जाएंगे। प्रेम पर है कविता और प्रेम में एक्सपेक्टेशंस होती हैं सबकी। जी। मैं चाहूँगा तुम मेरी बातों की बात करो, मैं चाहूँगा तुम कभी कभी मेरी बातों की बात करो, जिस रात हम ही थे जगे हुए तुम उन रातों की बात करो। तुम में दिखते हैं रंग सभी, तुम में दिखते हैं रंग सभी, तुम सातों की बात करो, मन के सागर ना सूख सकें अब बरसातों की बात करो। मेरे हाथों में जम जाने वाले अपने हाथों की बात करो, मैं चाहूँगा तुम कभी कभी मेरी बातों की बात करो। बहुत बढ़िया। न जाने इन गहरी बातों से क्या होगा यूं सहमे दिल का, जब छिपे हुए हर एक तेरे मुझे पता होगा दिल का। अपनी इस नाजुक मुट्ठी को अपनी हर बंदिश रख कर देखो, अपनी इस नाजुक मुट्ठी में अपनी हर बंदिश रख कर देखो, जाते जाते मुड़कर यूं ही हर शाम हमें पलट कर देखो। कि समय समय से रूठा कब, कि इट्स नॉट द करेक्ट टाइम, समय समय से रूठा कब जो इन आँखों का मेल नहीं, कई सवालों की सरहद है चंद दिनों का खेल नहीं। सरकाकर जब इन शब्दों को तुम अर्थ भटकता पाओगी, भीतर से गुम बेसुध मुझको सन्नाटा रटता पाओगी। कि मेरी की गई हर हरकत को तुम नया नया सा कहती हो, मेरी की गई हर हरकत को तुम नया नया सा कहती हो, तुम भी तो हर बर्तन में पानी जैसा ढलकर रहती हो। पानी जिसकी बूंदे कोमल तीर आंखें तुम्हारी तरकश हैं, पानी जिसकी बूंदे कोमल तीर आंखें तुम्हारी तरकश हैं, दरीचे से झांक रहा हूँ मैं बारिश कितनी दिलकश है और बादल सा ही मन मेरा है। बारिश कितनी दिलकश है और बादल सा ही मन मेरा है, ज़मीं से पानी चाहता है, बादल सा ही मन मेरा है, ज़मीं से पानी चाहता है, जिस कसक से कोई बुढ़ापा भरी जवानी चाहता है। वाह वाह। मैं तुम चाहत हो चाहकर मुझसे हर सच का ऐलान करो, हरदम जो मुश्किल सा था आहिस्ता आसान करो। मैं चाहूँगा कि तुम मेरी बातों पर हंसकर कई सवाल करो, चेहरे को तकिए से ढककर अपना कुछ ऐसा हाल करो कि शर्माओ और जिक्र करो अपने उन अफसानों का, कि शर्मा और जिक्र करो अपने उन अफसानों का, और अफसानों को बुनते बुनते मेरा ही ख्याल करो। कोई चाहकर तस्वीर बनाए, मैंने उनका एक स्केच बनाया, तो कोई चाहकर तस्वीर बनाए, तस्वीर तेरी में आतिश हो। आई लाइक एम्बिशियस वुमेन, सो कोई चाहकर तस्वीर बनाए, तस्वीर तेरी में आतिश हो। मैं चाहूँगा तुम्हें सताना, मिलो कभी जब बारिश हो, और मैं मिलकर कुछ बातें कह दूँ अब मुलाकातों की बात करो, मैं मिलकर कुछ बातें कह दूँ अब मुलाकातों की बात करो। मैं चाहूँगा तुम कभी कभी मेरी बातों की बात करो, मैं चाहूँगा तुम कभी कभी मेरी बात। वाह 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 रक्षित, बहुत बढ़िया। और रक्षित कैसे हो भाई? Perfect. So I know Rakshit. You know of me. We have met the first time. 2019, 2020. Yes, around COVID. I was just 14 years old. Yeah, this was a 14-year-old kid. We during COVID we had done a online poetry competition. Wow. National Summer Slam Poetry. Yeah. Oh yes, yes. We had yes, some yes. 1,500 entries from all over the country, and we selected the top 5 that were featured on our channel. His was not only one of them, he came first in that. Really? That I got to know today. Yeah. And अरे नहीं, मैं बताता हूँ। पाँच नहीं, पाँच या छः डाली थी पेज पर, यूट्यूब पे नहीं डाली बट इंस्टाग्राम पे डाली थी, और उसमें ये पोजीशंस नहीं दिए थे। पोजीशन फर्स्ट वाला नहीं पता था मुझे। अच्छा, फर्स्ट वाला नहीं था। हाँ। तो नहीं था, सॉरी। नहीं था, नहीं पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था। ओके, मैं शायद भूल गया भाई, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, नहीं, सॉरी। बट भाई मुझे इतना अच्छा लगा जब रक्षित, आई न्यू दैट रक्षित इज गोइंग टू परफॉर्म, बिकॉज मेरे को याद आया वो 14-year-old kid, you know, वो अपने गांव के खेत में खड़े होकर अपने गांव के बारे में उसने एक पोएम पढ़ी थी, राइट? एंड वो गांव के बारे में तुम्हारी पोएम, ये जानकर मन मेरा नाराज है उदास है कि उस गांव की पहचान है कि वो शहर के पास है। क्या बात! वाह So good. ये वाला भी बोल दो यार। हाँ, ये वाला भी सुना दो, अगर याद है तो सुना दो। तो सुना दो। चलो लास्ट है तो आई विल टेक सम। कोई बात नहीं, हाँ, चलो, ठीक है। वैसे ही बारिश हो रही होगी, है ना? यह जानकर मन मेरा नाराज है उदास है कि उस गांव की पहचान है कि वो शहर के पास है। मैं खफा हूँ इस बात से, हैरान हूँ हालात से, कि उस गांव के पते में आखिर किसी शहर का जिक्र क्यों, कि कस्बात की मस्ती में घुलती है शहर की फिक्र क्यों। बारिश में भीगे झूले हैं उस बचपन को ढूंढ रहे,
बारिश में भीगे झूले हैं उस बचपन को ढूंढ रहे, गम में डूबी अलसाई आँखों को आंसू गिराते मूंद रहे, उन चौराहों को भूल गए हैं जहाँ धूल में लिपटी तुम्हारे शहर की बुनियाद रखी है, पीपल के पत्तों में अपने गाँव की याद रखी है। ऐसा तो चलो वो पुराने बसते वो रस्ते अब तुम। हाँ, आपने ये you wrote this when you were 14. Yes, I wrote it when I was 13. Yeah. That's incredible. हाँ. That is incredible. भाई इससे तो पता नहीं कितना बॉर्नवीटा पिया है भाई, इसने बॉर्नवीटा के इंजेक्शन मारे हैं भाई रक्षित ने। बॉर्नवीटा से पैसा ले लेना सिमर भाई, बॉर्नवीटा से हाँ, we better get a sponsorship from Bonvita now. But dude, this is amazing. So what has your journey been after that? I mean, I've not been in touch. I have no idea. आप अभी भी कविताएं लिख रहे हो? I was very sad when you went to New Zealand because I was like कि यार एक बंदा मिला था ढंग का who ये प्राग listen- गया था actually. Okay. Okay. Pass My में bad. है। कोई बात नहीं। Same Okay. विलायत तो गया था, हाँ then नहीं I actually am studying literature. तो आई एम स्टडिंग लिटरेचर इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द नेशन एंड मैंने अपने स्कूल में वो फॉर्म में लिखा है। कहाँ पे? हाँ, हिंदू कॉलेज अच्छा, nice. DU. Nice. Yes, I am studying there and I am in my bachelor's third year. Okay. I am 21 just अभी क्या हुआ। बात है। So much to learn, bro, for you guys, है ना? अरे नहीं Especially for these two, है ना Simran? नहीं, I am a great fan of Sid, sir. अरे वाह, thank I was you. very happy you were in the panel. Oh, that's so Aww. nice. So, when I was listening to your poem, the original one, Right. I felt like it was a romantic poem. हाँ. But I don't know if anybody else also got this. There was an undercurrent of irritation. कि मतलब you Yeah, were- हाँ, it's a mix of everything ना, because love is like a box of chocolates. वो उससे मैंने लिया है वो जो फॉरेस्ट गंप। Right. It's everything. Yeah. So that's I actually liked that. मतलब कई बार जो प्यार का कविता होता है इसमें सिर्फ प्यार ही होता है, but हाँ. it felt more. It had more depth in yours. Thank you. Because it felt like okay, there was an irritation कि भाई तू क्यों नहीं कर रही है? And to express that. चलो is- that was my goal कि वो कैच हो जाए। हाँ वो मिल गया. हाँ। भाई आपकी शादी में क्या चल रहा है आपको? कुछ बात करनी है? यार as it's like he said कि 10 साल शादी के बाद वो डेप्थ आ जाता है यार, मतलब it has all flavors. Something weird about you is that you move on from people In 2 business in days. 2 business days. हाँ, basically it's 20 seconds. I thought 2 days लिख देता हूँ। अच्छा तो ये 2 business days का क्या चक्कर है, मतलब वीकेंड को क्या होता है? हाँ, वीकेंड को मैं हैबिटेट पे अब से आऊँगा तो कवर्ड है। हाँ। नहीं, how do you move on from people so soon? नहीं, I believe that if they are meant to be there, they'll be. And if not, then I just see कि उन्होंने क्या सिखाया. I write 2-3 poems and then move on. अच्छा हाँ. Content for content जो प्रिया मैम ने कहा ना। हाँ. अच्छा ये आपके unusual skills में belly dancing भी है. मैंने नहीं लिखा। ये किसने लिखा? ओह यार। किसका fault? पढ़ रहे हो यार? नहीं हूँ. ये क्या कर रहे हो यार? कटा हुआ है भाई। कहाँ से belly dancing करेगा? Not my fault, Rakshit. ये printer का fault है. देखो नाम Obvious लिखा है fault. रक्षित ये कपूर. I was हमारे- like, this doesn't strike me like a guy. काटा हुआ है हमने प्रोडक्शन टीम को। ये आपने ये जो इतना कटिंग लिखा हुआ है ये आपको लग नहीं रहा कट चुका है? I'm trying to read in Bro, between I the would actually lines. now love to see him belly dance. कुर्ते में आदमी कैसे करेगा belly dancing यार? नहीं भाई यार, कुर्ता पजामा मैं ये नेहरू जैकेट क्यों डाल के हूँ भाई? मोदी जैकेट ब्रो। You don't Now talk about habitat is saved. Modi. You don't talk about him. नो ब्रो, बट बेली डांस अब मेरे को सुनना है। अच्छा रक्षित ये कविता किससे इंस्पायर होकर लिखी थी आपने? One of the girls. One of the girls कितनी है I रक्षित? don't keep a count. I don't keep a count. भाई यहाँ You पे don't लिखा है. count. नहीं, Oh God. मैं उन लोगों में से हूँ मेरे को जो पता ही नहीं am I supposed to like this guy or not? मैं मिक्स फीलिंग आ रही है likability और नहीं, I like to maintain paradoxes. मैं उन लोगों में से हूँ जो शरीफ दिखते हैं बट अच्छे होते हैं। करीब दिखते हैं बट अच्छे होते हैं. ये भी फ्लिप कर दिया सेकंड हाफ में कुछ एक्सपेक्ट ही. अच्छा ये जो लिखा है आप लोग को समझ आता है क्यों? बिकॉज यू गाइस आर ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह. विस्मय आदि बोधक चिन्ह which means exclamation अच्छा mark. जस्ट अच्छा Yeah, ये yeah, मेरे को लगा ये कोई पोएट्री लाइन है. वो हर माय इग्नोरेंस मैं बोल रहा था ये क्या लिखा है भाई ने यार. he has lost count of the times he has tried to play with words, you see. Yeah. If I had to define myself, आपने अपने बारे में लिखा, if I had to define myself, I'd say I'm not a writer, rather a thermostat. Yeah.
इसका मतलब इसका मतलब आपको सेठ भैया को समझ में आएगा। बताओ सेठ भैया, आप बता दो सेठ भैया। नहीं आप ही बता लो। सेठ भैया बड़े ढप्पा लग रहे हैं। नहीं देर आर कि मेरे 11th 12th में हिंदी क्यों छोड़ दी। नहीं सेठ को तो 2 बिजनेस डेज लगेंगे भाई। नहीं आई टेल यू बाय द वे गुड जोक। थैंक यू भाई। नहीं भाई हमें जज कर रहे हो भाई इज गिविंग अस 7 8 फॉर द जोक्स। ठीक है। नहीं मैं ये देख रहा था यार, मार्क्स के लिए कितना कुछ करवाया इन्होंने। इसकी 2000 टिकट होनी चाहिए थी, सिंगिंग डांसिंग एवरीथिंग। हाँ भाई आई एग्री, 2000 तो टिकट होनी चाहिए। next time we'll do नेक्स्ट that, टाइम। हाँ। फिर 6 बट गेस्ट टिकट लोग आएंगे फिर। फीडबैक भी मिल गया। नहीं, यू आस्क थर्मोस्टेट वाला। हाँ, बताओ। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, वन इज अ थर्मोमीटर, वन इज अ थर्मोस्टेट। अब थर्मोमीटर ये है कि गर्म माहौल है, आया गर्म हो गया, ठंडा माहौल है, इज काम। आई थिंक आई एम अ थर्मोस्टेट बिकॉज व्हेन आई कम टू द रूम, व्हेन आई कम टू द स्टेज, आई क्रिएट द एनवायरनमेंट, आई विल चेंज इट। Oh, so you will you will regulate people's emotions. Yes, I am a manipulator. Oh, you're a manipulator. आप अच्छी तरह से फ्रेम करना चाह रही थी, वो अपने आप को खराब ही बोल रहे हैं। Yes. All right. So I want to get to the depth of this because you're a very interesting individual. आपको जिंदगी में एक मैं genuine प्रेम की बात कर रही हूँ. You have written a love poem, and I feel one of the most important things जो poetry के लिए चाहिए होता है, वो होती है honesty. Yeah. है ना? Yeah. तो वो ऑनेस्ट प्रेम जिससे आपने लिखना शुरू किया, उसके बारे में आप मुझे बताओ. लॉस काउंट, ये वो प्लेयर, ठीक है। ये रख देते हैं Okay, साइड में. honest, हाँ? filterless. Yeah, हाँ. सजन राजी हो जावे ते रौला नहीं हो पाई दा पागला। ओह, सरताज को सुना है मैंने। हाँ। तो इसलिए अब अगर है ऐसा कुछ प्योर लव, तो आई rather keep it private because this world is a fucked up place. The world cannot destroy what they don't know. Yes. Acha, interesting, very interesting. And maybe I have found that love. That's why I'm so confident playing the playboy here. अच्छा, Yeah. maybe. हाँ. रक्षित भाई से ना मतलब Mysterious vibes नहीं आ रही है। या मतलब ये आज से 2 साल में पंजाबी पर्सन हुज अ पोएट वाली या बादशाह के गाने में दिखेगा, समझ ही नहीं आ रहा है। I've lost count. I don't know how to read. You're also read a violinist and a tabla player. Yeah, Oh, yeah. nice. I have learned 10 years of music. So when I was in school, so yeah, I am a violinist. I am a tabla player. I have sung. That's a violinist and tabla is a very different, मतलब काफी range है भाई इसमें। तो हाँ. आपने बहुत ही बढ़िया है। I like to maintain paradoxes. I am a very corporate poem. अभी journaling का उन्होंने नहीं पढ़ा है. I like to journal a lot. And the greatest regret of my life is that I didn't start it earlier. So yeah, I like to maintain paradoxes. How old are you now? 21. Just turned 21 this October. So you started मेरे को journaling? बर्थडे के दिन मेल आया. This is interesting. मेरे को बर्थडे के दिन मेल आया. मेरे को बर्थडे के दिन मेल आया तो साला मैंने नहीं पढ़ा है ना. I was partying and I was enjoying with that one. Oh, अच्छा, तो she exists. Okay, good to know. Yeah, तो I was enjoying. I didn't read my mail. 15th को रात को मेल आया कि आपके पास कुछ घंटे हैं. हाँ बोलो, नहीं तो जाने दो. नहीं भाई ऐसे तो नहीं था मेल भाई, कुछ घंटे क्या ये सब समझ? ठीक है. फिर उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया मैं. देन सिमर भैया लाइक DM'd मी कि भाई डोंट यू रीड योर मेल्स. आई वाज लाइक इट वाज माय बर्थडे, आई डिडंट रीड इट. तो मैं पहले खुश हुआ कि ओके कांग्रेचुलेशंस. फिर मैंने कहा यार अच्छा स्टैंड बाय पे. फिर उसके बाद रिजेक्शन. तो देन इट हैपेंड. You know, we also like to maintain paradox. Yeah. Good for you. So great. Savage Priya Malik. All right, shall we score it? आई एम तो जस्ट स्टन्ड. वो जो 14 साल का रक्षित था और ये जो ये जो खड़ा हुआ है। मिस्टीरियस पैराडॉक्स तुम्हारे सामने खड़ा है, ये अलग ही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया. चलो, let's score Let's him. go Rakshit guys. Give it up for the judges. We have 8.9, 8.9, 9.15. 7.5. No. 1.5. 7? 1.5 है यार वो। आप decide बोल के 1.5 तुम अलग। भाई वोट चोरी मत करे यहाँ पे. वीडियो हम दे देंगे. चलो guys, give it up for Rakshit Kapoor. Yes, come on. Give him a huge round of applause. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया भाई. Thank you so much. Awesome. Yeah, I think it's time for us Yes. to announce the winner. If you guys want, we can come up Yes, let's do it. here on stage. All right, folks. The winner for tonight's episode of Poetristan is Sanskriti Singh! Can we have Sanskriti on stage, please? छत से चिल्लाकर बोलना पड़ेगा. It is Sanskriti Singh. Come on, Sanskriti. Huge round of applause. Huge round of applause. Congratulations. Do you have to share something? How are you feeling? It is unexpected. My didi would support me in this. But thank you. आप लोग को ये कविता पसंद आई और
Follow politics. It's very necessary. Please understand politics. Nice. Yeah, I would like people to write more, be empathetic more, and read books. They make you more empathetic. So nothing more. And a shout out to my mother, my dad. So yeah, they played a very Saying all the important right roles. things. Yeah. Just saying all the right things. Give shout out to future mother-in-law also, bro. right there. Oh, wow. Amazing. There. So thank you Aw. for coming. Yeah, thank you for listening. Awesome. Give it up for Sanskriti.